So hello students, myself Professor Rahul Mukherjee. So here we are with the third topic of the subject brand management for UT by BMS students. I hope so you all are keeping well, and here we proceed with the third topic of brand management as said. The third topic consists of certain parts, you can say, which are brand equity, somewhere in detail, sources of brand equity and brand positioning, its importance on the basis of what it is done, etc. Sources of brand equity, when I talk about, I've just give some glimpse of it in your PPT and then I have got into the details of it. एक बार revise करा देता हूँ, what is brand equity? It is the uniqueness of your company or your product or service that exists in the mind of the customer, that you have been successful to create in the minds of the customer. Sources of brand equity की हम बात करें तो ये uniqueness आपने अपने product या company के image के बारे में लोगों के दिमाग में कैसे डालना है, आप किस तरीके से डालोगे. तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स. यू कैन क्रिएट सम अवेयरनेस, यू कैन एसोसिएट योर ब्रांड विद वेरियस अदर ब्रांड्स लाइक मोस्ट ऑफ द फोन्स लाइक वीवो हो, ओप्पो हो, काफ़ी सारे हैं, रेडमी एक्सेट्रा, सम मोर. Most of them use Sony as their cameras. They are trying to associate themselves with a branded company who is known for its cameras, etc., screens, technology, etc., and thereby trying to promote their brand. Vivo, if you remember, तो उन्होंने खुद को IPL के साथ जोड़ा था, द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL. ओप्पो शुरू से ये बोल रहे हैं हम कैमरा फोन्स के लिए, बेस्ट क्वालिटी सेल्फीज के लिए जाने जाते हैं. सो दिस इज द यूनिकनेस. सो ये एक अवेयरनेस से डेवलप करते हो, एडवर्टीजमेंट से, ब्रांड पर्सनालिटीज को एसोसिएट करके, राइट. लाइक बहुत दिन से आपने ये देखा होगा कि शुरू में जब मैक्स फोन आया था तो दे सेलेक्टेड धोनी, महेंद्र सिंह धोनी एज द ब्रांड एम्बेसडर. ठीक है, तभी धोनी का करियर वॉज कम्प्लीटली फ्लरिशिंग इन टर्म्स ऑफ मैचेस हो, IPL हो. ओके, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑन दिस अबाउट ब्रांड इक्विटी कैन बी रिलेटिंग इट विद सम पॉइंटर्स. आई वुड से ब्रांड एंडोर्समेंट कौन कर रहा है आपका, ठीक है, मतलब हु इज द सेलिब्रिटी बिहाइंड इट, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर, हु इज द स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, आइदर मे बी अ पर्टिकुलर, जैसे अमिताभ बच्चन जी गुजरात टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, तो हु इज़ द फेस बिहाइंड द प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आ जाता है. कभी कभी आप कुछ चीज़ें देखोगे जैसे रेड लेबल चाय का ऐड, एक घर की जनरल सिंपल हाउसवाइफ कर रही है, वो कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है. सर्टेन एड्स ट्राई टू रिलेट इट विद कॉमन पीपल, ठीक है. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रांड इक्विटी, यूनिकनेस. बिस्लरी जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल दिया था, सी now they have completed 50 years of their trust with added minerals since 1969, and we all know this, right? So this is how things goes. A uniqueness is somewhere developed and thereby it is launched in the market. Apart from this, some other points in creating brand, sources of brand equity can be through certain events, through certain collaborations with other companies, through your previous product that you have launched. I repeat, through your previous product that you have launched. जैसे मैंने पिछले टाइम भी एग्जांपल दिया था कि कैडबरी इफ दे कम आउट विद कैडबरी ओरियो बिस्किट्स, देन के वो तो काफ़ी हिट हुआ मार्केट में, इट हैज़ अ गुड मार्केट शेयर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्रीम बिस्किट. देन दे केम आउट विद कैडबरी बॉर्नविटा बिस्किट्स एज वेल, राइट. तो उन्होंने अपना प्रीवियस ब्रांड एनकैश करके ही नया ब्रांड का प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में. Apart from this, brand equity is also a source, and another source can be what image of your company is there in the market or in the minds of the people. From there also a source of brand equity can generate, and it can create an impact in the minds of the customer to purchase your product. Moving ahead with this, coming to one of the most important topics and answer, short question in your university paper of Mumbai is brand positioning. उसके इम्पोर्टेंस मीनिंग देखेंगे, पहले इम्पोर्टेंस देखेंगे एंड basis, on what basis it. Trust me, the next 10 to 15 minutes, 10 minutes of this video somewhere will be quite very much interesting for you all. So talking about brand positioning, simple सा meaning है brand positioning का. It is the perception of a particular brand, may it be a company's name or a product that you are successful in creating in the minds of people in certain regards. जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि दिस इज समवेयर ब्रांड पोजिशनिंग. दिस इज अ च्यवनप्राश का बॉटल प्रमोटेड बाई श्री श्री रविशंकर. पतंजलि का भी आता है, डाबर का भी आता है, यू ऑल नो इट, राइट. नाउ सी व्हाट दे हैव सेड इन दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन, व्हाट दे हैव सेड, और कोरोना
फैला हुआ है, हम सबको पता है, एंड वी ऑल रिक्वायर strong immunity, and this is somewhere an Ayurveda related product. So see here you can see herbal immunity booster. So this is somewhere brand positioning. वो सिर्फ आपको च्यवनप्राश की एक बॉटल नहीं बेच रहे, वो आपको इम्यूनिटी, हाँ गारंटी नहीं दे रहे कोरोना से लड़ने की, बट हम सबको पता है कि आज अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो वी कैन फाइट कोरोना इजीली और हम लगने ही नहीं देंगे. दिस इज ब्रांड पोजिशनिंग. Another example on brand positioning I would rather give, if you know this personality, Suresh Mukund, I think सब जानते हैं, he has made India proud in terms of dance at foreign international level. If you see, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा उनके डांस कोर्स वगैरह के बारे में यहाँ पे है, बट उसके पहले उन्होंने पोजीशन कैसा किया है. बैक साइड ऑफ द ब्रोशर डिजाइन से मैं आपको रिलेट कराऊंगा. दे हैव फ्रॉम 2009 to 2019 दे हैव सेड कि उनका जर्नी कैसा रहा है, राइट. स्टार्टिंग विद बूगी वूगी, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा. इंडियाज गॉट टैलेंट दे वॉन, हिप हॉप चैलेंज वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल, एंड रिसेंटली वर्ल्ड ऑफ डांस में चैंपियंस. वन ऑफ माई वेरी क्लोज कलीग्स, he is, therefore I know him personally, the 10 years journey, and I know in what way somewhere he's thinking to promote. अब ये क्या है, ये एक तरीका था कि if you somewhere get associated with Kings United Dance Studio, you get a chance in future, if you perform well, you get a chance to get into Bollywood somewhere or into such shows. ठीक है, ये उनकी पहुंच बता रहे हो. दिस इज ब्रांड पोजिशनिंग, कि हम सिर्फ डांस नहीं सिखाएंगे आपको, हम आपको ये कोर्सेस करवा के ये चार्जेस लेके, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा सकते हैं. दैट इज अ काइंड ऑफ ब्रांड पोजिशनिंग दे आर ट्राई टू डू, रिलेटिंग यू विद द ड्रीम्स दैट यू आर लुकिंग एट. ठीक है, तो ये था अबाउट ब्रांड पोजिशनिंग. Many products, most of the products try to position themselves in the minds of people कि हम बजट में हैं, कि हम प्रीमियम ब्रांड है, हम डेली यूज़ के हैं, कि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, समथिंग लाइक दैट. जैसे रेडमी के फ़ोन्स आप देखोगे तो रेंजिंग फ्रॉम 10,000 to 15,000, 20,000, 25, 30 एक्सेट्रा तक जाता है, बट वन प्लस आपको 10,000 में नहीं मिलेगा, 30,000, 40,000 के रेंज में. आईफोन तो बोलता है मैं ये रेंज में हूँ ही नहीं. आई डोंट फॉलो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, आई एम नॉट स्किमिंग. मैं सीधा 50,000, 60,000 या 1 लाख से लॉन्च होता हूँ. एंड इफ यू वांट अ प्रीमियम ब्रांड विद हाई फाई टेक्नोलॉजी, यू कैन गो विद आईफोन. सो दिस इज हाउ दे ट्राई टू पोजिशन देयर ब्रांड्स इन द मार्केट, इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड पोजिशनिंग यही है कि जब आप पोजिशन कर लेते हो लोगों के माइंड में, इजीली बैंगिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन सेल योर प्रोडक्ट. लाइक पार्ले जी, द हाईएस्ट सेलिंग बिस्किट्स ऑफ इंडिया, है कि नहीं. तो हम पार्ले जी भी लेते हैं, पार्ले मोनाको भी लेते हैं, पार्ले हाइड एंड सीक भी लेने जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट. आईटीसी डार्क फैंटेसी है, फिर भी मैं जाके पार्ले मिलानो लूंगा, और बिस्किट जिसके अंदर लिक्विड चॉकलेट है, शायद, बिकॉज आई एम गेटिंग ब्रांड लॉयल, बिकॉज उन्होंने पोजीशन ही कुछ ऐसा किया. बजाज का चेतक एक हिट मॉडल था, बट करेंट जनरेशन में अगर आपके यंगस्टर्स के जनरेशन की बात करूँ तो बजाज पल्सर ने, वो एक ऐसा बजाज का मॉडल है जिन्होंने सब कंपनीज के नाक में एक दम करके रखा इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन. इफ यू नो, राइट, वी ऑल नो बजाज पल्सर के सीरीज शुरू हुए थे कितने से और अब 220 एक्सेट्रा तक पहुंच चुके हैं. So this is how brand positioning is done in the minds of people, that this is a bike for youngsters and you can actually go for it, right. Honda के भी कुछ मैंने मॉडल शेयर किए थे, बीच में करिश्मा मॉडल करके आया था हीरो होंडा का, so that was even a close, it was associated with roadies, if you know the show, again for youngsters. So this is how brand positioning is done in the minds of people. Importance, सेल्स बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, पब्लिसिटी होती है, प्रमोशंस होते हैं, लोग जानने लगते हैं आपकी चीज़ों को, लोग उस चीज़ से आपको एसोसिएट करने लगते हैं. ठीक है, कि मिनरल वाटर तो बिस्लरी के साथ ही जाएंगे, डिटर्जेंट लेना है तो टाइड ही लेंगे, गाड़ी लेना है तो मारुति के साथ जाएंगे, समथिंग लाइक दैट. ओके, सम मोर एग्जांपल्स कैन बी गिवन ऑन दिस. आई वुड से पाउडर, टैल्कम पाउडर लेना है तो पॉन्ड्स लेंगे, समथिंग लाइक दैट. एक्स, for gents it can be X powder, or for gents it can be Denver powder, etc. So something like that, they try to make you used to their products slightly by slightly, making you connected with their brand. Okay, so some more importance of brand positioning, like I said, that if your previous brands are positioned in such a way in the minds of people or consumer, you can launch a next brand very well, very proudly. ठीक है, and that can also have, that will have chances of getting super hit in the market. Moving ahead with the last topic for the day, basis of brand positioning. On what basis you will position your brand. ठीक है, बहुत
इंपॉर्टेंट आंसर है, ध्यान से सुनना, अदरवाइज आप कुछ मिस कर जाओगे, ठीक है। कौन से बेसिस पे, कौन से पैरामीटर्स पे आप अपने ब्रांड को पोजीशन करना चाहोगे मार्केट में। सो द बेसिक थिंग कैन बी द प्रोडक्ट इटसेल्फ, कि अगर क्रीम बिस्किट है तो आप बच्चों को दिखाओगे, आप यंगस्टर्स को दिखाओगे। जैसे डेयरी मिल्क, एक अगर आपको ऐड याद है, बस स्टॉप पे एक लड़की वेट कर रही है और एक लड़का आके कहता है मेरी माँ कहती है कुछ अगर शेयर करने से किसी का भला हो जाए तो हमेशा शेयर करना चाहिए, तो इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। अमिताभ बच्चन केम आउट विथ पप्पू पास हो गया तो कुछ मीठा हो जाए, फिलहाल शुभ आरंभ करके दे हैव गॉट देयर टाइटल, राइट, समथिंग लाइक दैट। सेलिब्रिटी, कैडबरी का जो पैकेज आता है उनके वेरियस चॉकलेट्स के, तो वो रक्षाबंधन में, बट वो सिर्फ रक्षाबंधन के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो रहा था, नाउ दे हैव प्रमोटेड इट इन दिवाली as a festival also, so something like that they try to position. So one is product wise, second somewhere can be technology wise, जैसे iPhone promotes it as a bang on technology, right, some premium brands of cars, some premium brands of TV जैसे MI TV हो या कुछ कंपनीज के मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, मोबाइल फोन, सो दे ट्राई टू प्रमोट देम विद टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी समवेयर इज रूलिंग द मार्केट इन दिस जनरेशन, IT रॉक्स, एंड देयरफॉर आप टेक्नोलॉजी वाइज हमने को आपके लिए बनाया है, दिस इज हाउ दे ट्राई टू पुश द प्रोडक्ट इन द मार्केट। देन दे स्टार्ट शोइंग यू रेलेवेंस, कि ये आपके लाइफ के साथ लेना देना है। मैं जो इंश्योरेंस कंपनी ऑनलाइन साइट की बात कर रहा था, policybazaar.com, जहाँ पे आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो कि बेस्ट कंपनी कौन सी है जो आपको कम से कम प्रीमियम में ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट या डेथ बेनिफिट अमाउंट देता हो आपके परिवार को, वो लेंगे आप। आज आप जिंदा हो, कल को आप नहीं रहे तो क्या, आपके परिवार का क्या। सो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू रिलेट द प्रोडक्ट विद यू, और ये सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, देयर इज वेयर दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड थिंक ऑफ परचेसिंग, ये रिलेवेंस। फिर एक होता है क्लैरिटी देना, कि ये शैम्पू है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इससे आप नहाओगे, जैसे हेड एंड शोल्डर एंटी डैंड्रफ, इससे आप नहाओगे तो डैंड्रफ क्लीन अप हो जाता है। सो देयर इज वेयर दे आर ट्राइंग टू पोजीशन इट वेरी पर्टिकुलरली ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट कंज्यूमर्स आर गोइंग थ्रू। क्लैरिटी, ठीक है, ब्रांड पोजीशनिंग का। और बेसिस है डिफरेंशिएशन, डिस्टिंक्शन, कि आपका ब्रांड बाकियों से कैसे अलग है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से कैसे अलग है, ठीक है। एट प्रेजेंट हॉर्लिक्स आपने देखा होगा पिंक फ्लेवर में आता है, विच इज फॉर लेडीज, दैट इज ब्रांड पोजीशनिंग इन द माइंड्स ऑफ पीपल, कि हॉर्लिक्स इज नॉट मेंट फॉर किड्स, इट इज ऑल्सो फॉर लेडीज, फॉर गर्ल्स, उनके इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, उनको पावर देने के लिए। रिवाइटल करके कैप्सूल्स आते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी के बाद थक के आते हैं, और फिर दे कैन टेक दैट फॉर देयर स्ट्रेंथ, पावर, वो थक ना जाए, उनमें स्टेमिना बढ़ा रहे और वो बाकी काम भी अच्छे से संभाल पाए। देन गोज विद बजट। अभी आप देखोगे सर्फ एक्सेल का 5 किलो का भी पैकेट आता है, 1 किलो का भी आता है, 5 किलो के साथ बकेट फ्री मिलता है, 1 किलो के साथ कुछ डिस्काउंट, बट उनका क्या, जिनका बजट कम है, तो 10 रुपीज का सर्फ एक्सेल ट्रायल पैक भी आता है, यस और नो। सो ट्रायल पैक्स आजकल बहुत आने लगे हैं मार्केट में, आप देखोगे जिनके बड़े पैक्स आते हैं उनके छोटे पैकेट्स, सैशेट्स क्यों लॉन्च होते हैं, सो दैट दे कैन टारगेट द मार्केट वेरी वेल, गेट इट सोल्ड, लोगों को आदत लगा दे, और उसके बाद दे कैन एंटर द मार्केट वेरी वेल एंड वाइड स्प्रेड एरिया को कवर अप करें। समवेयर लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभी ब्रांड पोजीशनिंग का बेसिस ये हो जाता है बेस्ड ऑन कि मेरे पास कौन से सोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। इफ मारुति स्विफ्ट इज अ हिट मॉडल, तो मारुति स्विफ्ट डिजायर लॉन्च करूंगा, बिकॉज द नेम ऑलरेडी हैज क्रिएटेड एन इम्पैक्ट इन द पीपल। मेरे पास रिसोर्सेज भी है, आई कैन यूज देम, आई कैन यूज दोज मशीन्स, मॉडल, डिजाइन एक्सेट्रा, समवेयर मॉडिफिकेशन करके आई कैन लॉन्च इट। आईफोन अपने नए नए सीरीज लॉन्च करता है, हम सबको पता है। तो कुछ इस तरह की brand positioning can be based on certain factors. So this was about the third topic of brand management. So somewhere we are at the end. We are to the end of module 1. I'll share some questions on this. You can go through it. Some more case studies will be shared on this. And I hope so बहुत सारा brand का idea आपके दिमाग में आ गया with some examples. Keep your eyes open, keep your minds open. Look at things. Start relating them कि अगर वो है तो कुछ reason है वो brand का, वो company का। अच्छा कर रहा है तो उसका भी रीजन है, अगर डूब रहा है तो उसका भी रीजन है। एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, टाटाज किंगफिशर जो मैंने अभी बात की उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो एन नंबर ऑफ थिंग्स, लुक एट एडवर्टीजमेंट्स ध्यान से, लुक एट प्रमोशन स्ट्रैटेजीज ऑफ द कंपनी, एंड देयर इज वेयर यू विल स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट एंड मे बी यू विल डेवलप अ करियर इन फ्यूचर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्टे ट्यून्ड for more units, second, third and fourth are yet to come. तब तक आप ये first unit thoroughly कर लो. Use my PPTs for your support. If any suggestions, you can give it to us. Thank you so much. Here we end our module 1. Thank you. Take care.